عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم ناظرین کرام، سامعین اعظام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 13 جمادی الاول 1443 ہجری مطابق 17 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس ملاقات میں، اس لقاء میں، بروز جمعہ بعد نماز عشاء، میں خصوصیت کے ساتھ یہ مجلس آپ حضرات کے لیے سوال و جواب کے لیے میں نے منعقد کی ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے۔ خطبہ جمعہ کے اندر، مسجد کے اندر لائیو پروگرام ہو رہا تھا، اور نیچے کمنٹ جو ہمیں دکھائی تو نہیں دے رہے تھے، لیکن اس وقت تقریباً 1500 سے زیادہ کمنٹس آ چکے ہیں، اور سننے والوں کی تعداد بھی 1,00,000 کوئی 15-20 ہزار ہو چکی ہے۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پر کہ دعوت توحید کس قدر یتیم ہو چکی ہے اور کس قدر تنہا ہے، اور کس قدر یہ اکیلی پڑ چکی ہے۔ ہم لوگوں کو کفر اور شرک سے دعوت دے کر، نکال کر توحید اور سنت پر، قرآن و حدیث پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کا جو کمنٹ تھا، ہمارے کچھ تبلیغی بھائی جو اکرام مسلم کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا میں ایسی گالیاں اور ایسے کمنٹ ہوئے کہ گھر میں میری بیٹیاں بھی دیکھ رہی تھیں، میرے بچے بھی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، میری بیوی بھی دیکھ رہی تھی لائیو، آنسو نکل پڑے ان کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ گالیاں ہمارے لیے ہدیہ ہیں، تحفے ہیں۔ ہم تو گالیاں ہی پا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی دعوت توحید کی بنیاد پر پتھر مارے گئے تھے۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ آج کے ہی دور میں نہیں، آگے بھی، آج کے دور میں جب ہم اتنی محنت کر کے، اور ایک الحمدللہ علماء بھی موجود ہے پوری دنیا میں اور توحید و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں مزید قوت کی ضرورت ہے۔ میں اپنے علماء سے، طلباء سے یہ بسط احترام، معذرت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت امت کو توحید باللہ کو سمجھانے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ شیطان اللہ کے صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا، اور صراط مستقیم کیا ہے جس کو ہم صبح و شام اللہ سے مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، وہ راستہ جس راستے پر تیرا انعام ہے. اور انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں قرآن کریم میں فرمایا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کا انعام ہے ان کے اوپر جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. انبیاء مشرک نہیں تھے. یہودی اور نصرانی جب آپس میں لڑنے لگے تو وہ ایک دوسرے کو تو کافر کہتے ہی تھے. ایک جگہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہنے لگے کوئی کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہنے لگے کرسچن ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے حبیب آپ کہہ دو کہ نہ یہودی نہ نصرانی، ملت ابراہیم پہ آؤ جو ہر دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف آئے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. یہ صفت ہوتی ہے ایک داعی کی. داعی کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، شرک کی طرف نہیں دعوت دیتا. ایک جگہ اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین. ایک داعی کا کردار اللہ بتلا رہا ہے. یہ داعی کی خوبی ہے، یہ داعی کی صفت ہے کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کی دعوت دے رہا ہوں علی وجہ البصیرہ، علم کی روشنی میں، میں بھی ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دو کہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آج اسی سنت کو، سنت ابراہیمی کو، سنت مصطفی کو اپناتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ بندے ناچیز معراج ربانی حاضر ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو منہج تھا. وما انا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. الحمدللہ. اور جو میری طرح جو علماء اور دعات اور بھی موجود ہیں دنیا کے اندر جو منہج سلف پر ہیں، الحمدللہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، وہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں. کسی شخصیت، کسی جماعت، کسی گروہ کی طرف نہیں. وہ گروہ اہل السنہ والجماعہ والحدیث، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب اور نجات پانے والی جماعت اور گروہ وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں. اور ایک روایت میں ہے الیوم، آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک صرف توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا. آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر چیزوں کی طرف نہیں بلایا، بلکہ آپ کی دعوت کا محور جو تھا وہ توحید کو دلوں کے اندر ٹھوس کرنا، مضبوط کرنا. کیوں؟ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ایمان پر ہوتا ہے، عقیدے پر ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو کافر بنا دیں، یا کسی طرح سے اس کو ملحد بنا دیں، یا کسی طرح سے اس کو مشرک بنا دیں. جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خلاص، پھر اس کے بعد وہ ٹانگ پھیلا کے سوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ جانتا ہے کہ یہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. اب یہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، تقوی طہارت کی بات بھی کریں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا. آج کے اس دور میں میرے عزیزو، عقید توحید بتلانا یہ بہت ضروری ہے. یہ اسلام کی اساس ہے، بغیر اس کے انسان اسلام میں انٹری نہیں لے سکتا، داخل نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ اگر شرک پایا گیا، چاہے جتنے اعمال ہوں، کتنے بڑے بڑے اعمال کیوں نہ ہوں آپ کے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، سب برباد اللہ تعالیٰ کر دے گا. اگرچہ وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو، جی جناب علی، کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو. میں نے تو صرف ایک خاص جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس طرح کی اور بھی جماعتیں. چونکہ سعودی عرب میں ایک جماعت پر، پہلی جماعت بریلویت پہ پابندی لگی. یہاں پہ بریلوی عقیدہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ شرک اور کفر کا ملغوبہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں.
یہاں پہ ان کی کتابوں پہ پابندی لگی، ان کے اس کے اوپر پابندی لگی. یہ مملکت سعودی عربیہ کا اپنا دینی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے. کیونکہ سیاسی امور الگ ہیں، لیکن جو دینی مسئلہ ہے اس کی وجہ سے وزارت شؤون اسلامیہ، اسلامی امور کی جو منسٹری وزارت ہے، اس نے یہ پابندی لگائی. اور پابندی کیوں نہ لگائے؟ جس جماعت کے اندر، جس گروہ کے اندر، جس کی کتابوں کے اندر شرکیہ اور کفریہ عقائد موجود ہوں، بدعتیانہ جن کے اعمال ہوں، جن کے وظائف ہوں، تو ایک ملک جو توحید و سنت کی بیس پر بنا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کا حق ہے وہ اپنے ملک میں جو چاہے کرے. نمبر ایک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر ظاہر نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر شرک کا مرتکب ہوا، حالانکہ محال ہے لیکن بفرض محال، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا 18 نبیوں کا ذکر سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ نبی بھی رسول بھی شرک کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے. نبیوں کا تذکرہ. ہم اور آپ کس کھیت کے مولی؟ ہم اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی خیر بنائیں، پوری جماعت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، میرے پاس ابھی اثر میں خطبہ دے کے آیا، کھانا کھایا، آرام کرنے کے لیے، قیلولے کے لیے لیٹا میں، فٹافٹ میسیجز آ رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے تبلیغی جماعت کو یہ کر دیا وہ. میں نے کہا یار مجھے تبلیغی جماعت سے کوئی دشمنی ہے؟ میرا کوئی خاندانی رشتہ ہے کیا ہے؟ بولے نہیں، آپ کو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، وہ سلمان خان آ رہا ہے، تو پتہ نہیں کون آ رہا ہے. اور گالیاں اس موبائل کے اندر آج ماں بہن بیٹیوں کی گالیاں دی گئیں. یہ اتفاق سے دیکھیے تصویر اٹکی ہوئی ہے، یہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کی فوٹو ہے، دنیا جانتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تبلیغی جماعت کے پورے عالمی طور پر ایک بہترین اسپیکر ہیں، بہترین اور عظیم شخصیت مانے جاتے ہیں. بڑے بڑے وزیروں اور بڑے بڑے منسٹروں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے مالداروں کے نکاح بھی پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں پہلے کئی ارب ایک نکاح میں گئے تھے، وہاں جس میں ڈانس اور کیا کیا تھا، سب شریک تھے. اور میں اتفاق سے آئی یہ بات، تو یہ سن لیں پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ کیا کہتے ہیں. ان کی بات سنیں. جو لوگ سعودی عرب کو کہتے ہیں کہ جی وہ نچا رہا ہے، تو فلاں کر رہا ہے، ڈھگاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کنجرے ہے، فجرے ہے، ٹھیک ہے. میں اسے یہاں نہ مشائخ اس کو حلال کہتے ہیں. 12 مہینے حرام حرام کے، جائیے ویب سائٹ پہ دیکھیے منسٹری کے، اسلامک منسٹری کے، حرام 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 ہی. لیکن عزیزان محترم، آپ کو بھی پتہ یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نہیں ہے کہ آپ خراش لگ گئی تو حکومت ذمہ دار ہے، آپ کے گھر میں پانی نالی بہ رہی ہے تو حکومت ذمہ دار ہے، بجلی چلی گئی تو حکومت ذمہ دار ہے، آپ کو روٹی نہیں ملی حکومت ذمہ دار ہے، سب حکومت 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 حکومت. آپ بری. یہ ملک نہیں کہ روڈ کے اوپر احتجاج کریے. سعودی عرب ہے، کتاب و سنت کے مطابق یہاں نظام ہے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی، ہو سکتا ہے بعد میں آئے. یہ دیکھیے مجھے لوگ اتنا سلمان خان کے خلاف کیوں نہیں بولتے، فلانے کے خلاف کیوں نہیں بولتے، میں کیا بولوں. یہ دیکھو آپ اپنے امیر محترم کے زبان سے خود سنیے کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جی جناب محترم سلیم خان صاحب اور آواز جاری، سلمان خان، یہ سلمان خان خان غالباً ایک کا نام سہیل خان ہے. لیجیے حضرت کو پورے نام نہیں آتے، سب پتہ ہے. آپ سب فیملی کو محبت پر سلام لیجیے صاحب، اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو. کیا بات. اور باقی سلیم بھائی آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سلمان خان جیسا فرما بردار بیٹا ملا. کیا بات. امیر جماعت تبلیغی جماعت کی طرف سے سرٹیفکیٹ شرافت کی نوکر بن کے زندگی گزارتا ہے. مجھے شعیب اختر نے سلمان بھائی کی 2 باتیں بتائیں، اس کے بعد سے میں ان کا فین ہو گیا ہوں. ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کے بہت ہی فرما بردار ہیں اور ان کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور چوں بھی نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں فوراً اس میں لگ جاتے ہیں. یہ جنت کا راستہ، جس نے ماں باپ کو خوش کیا اس کے لیے جنت ہے. تو آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں.
کیا بات. پھر دوسری صفت اس نے بتائی کہ اتنے بڑے سخی ہیں کہ جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. کیا بات. تو مجھے اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سنیے کے نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے جتنا جھوٹ بولیں وہ سچ ہے. صاحب سچ. تو مجھے اور یہ سرٹیفکیٹ مل رہی ہے تبلیغ جماعت کے امیر کی طرف سے، غور کیجیے آپ. کہ نبی کا فرمان ہے کہ سخی سے اللہ محبت کرتا ہے چاہے وہ عبادت میں کمزور ہی کیوں نہ ہو. ہاں ہاں. چاہے آپ عید کی ایک نماز پڑھتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے. یہ لیجیے غیب کی باتیں حضور کو پتہ ہیں. بخیل آدمی سے اللہ کا کوئی پیار نہیں، چاہے وہ ساری رات تہجد پڑھے سارا دن نفل پڑھے. سن لیجیے، اگر وہ کنجوس ہے اللہ اس سے پیار نہیں کرے گا. کنجوسیت کا جب یہ حال ہے کہ کچھ اور جو قبول نہیں ہے تو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ اس سے پیار کرتا ہے. لیجیے. جب سامری جادوگر نے بچڑا بنایا اور اس کی عبادت پہ لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کیا جائے. تو کچھ لوگ تھے تھوڑے سے، تو ان کو قتل کیا گیا. جب سامری کو پکڑا گیا قتل کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ موسیٰ اسے قتل نہ کرو اپنی موت مرنے دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تو اصل مجرم ہے، اس نے بچڑے کی پوجا پہ لگایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ اپنی موت مرا. تو آپ کی سخاوت اور آپ کی ماں باپ سخی ہے، وہ مشرک ہے، سخی ہے، اس کو اپنی موت مانا. اور ایک آپ کو میں نے کلپ دیکھی نان مسلم بھائی سب کے لیے میرے دل سے دعا ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو زندگی کے ساتھ واپس لائے. میں بھی اس کا شکار ہوا اور بہت ہی سیریس ہو گیا تھا. بہرحال لمبی گفتگو یہ آپ یوٹیوب پہ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. یہ حضرت کا بیان ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں سلمان خان کا نہ مداح ہوں نہ میں یہ حضور تو سب پورے نام وغیرہ بھی جانتے ہیں، مجھے تو المہم کیا پتا کیا ہے کون کون ہے. یہ باقاعدہ ان کا پیغام بھی جا رہا ہے آ رہا ہے. اتنا گہرا ربط ہے اور اس قدر جو ہے کیا کہتے ہیں بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں جنت کی، جیسے کہ استغفر اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی بشارت نہیں دی ہوگی. بہرحال تو یہ حال ہے ایسے لوگوں کا. تو میں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اور یہی نہیں، دارالعلوم دیوبند نے بھی تبلیغی جماعت کو بینڈ کیا تھا کسی زمانے میں، اور آپ کو شاید پتا ہو اور دنیا کو معلوم ہے یوٹیوب کے اوپر وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ میرے پاس بھی یہ موجود ہے. کیا ہے؟ ذرا صحیح کرو بھائی. صحیح دکھ رہا ہے. دارالعلوم دیوبند میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر کیا ہے؟ مکمل پابندی عائد. یہ دیکھیں، یہ مولانا نے پابندی لگائی. یہ جب ان کے اوپر پابندیاں دارالعلوم لگا سکتا ہے اور آپس میں کیوں لگائی دارالعلوم دیوبند؟ وہ آپ سب کو پتا ہے کہ آپس میں پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت دھڑوں میں بدل گئی، کیونکہ تانا شاہی چل رہی ہے. وہاں پہ باپ امیر تو یہ بھی امیر تو وہ بھی امیر، بیٹا امیر پھر پوتا امیر پھر پڑ پوتا امیر، یہی سب چل رہا ہے. بہرحال وہ ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے. اس کے یہ سب سے ہم کو کوئی غرض ورض نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے نا انبیاء تو یہ بھی مٹا. اور پھر اسی طرح سے سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ. اے میرے حبیب آپ کو بھی یہ وحی کی گئی ہے اور آپ سے جو پہلے تھے انبیاء اور رسول ان کو بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور ضرور بضرور آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی بھی نہیں بخشے جا سکتے ہیں اس کے حالانکہ نبیوں سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کرتے پوری دنیا کو اپنے بندوں کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ڈرایا ہے
कि शिर्क इतना भयानक और खतरनाक गुनाह है कि अगर वो किसी नबी से भी उसका सुदूर हो जाए, वो हो जाए, तो वो भी माफ नहीं किया जाएगा। याद रखो। फिर हम और आप किस खेत के मूली? क्या किसी जमात की निस्बतें आपको जन्नत में पहुंचाएंगी? आप हमें गालियां दें, नो प्रॉब्लम, गालियां देंगे, हमारे लिए दुआएं हैं मेरे भाई, मुझे दुआएं हैं, मेरे लिए दुआएं आप दें गालियां, क्योंकि इससे आपका किरदार और इकराम मुस्लिम का जो आपका दावा है और जो तौहीद का दावा है, ये सब खुल खुल के सामने, दुनिया के सामने आ रहा है और आना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का ये भी फर्ज है कि किसी ने अगर आपकी जमात पे, हमने तो पाबंदी नहीं लगाई, किसी ने अगर लगाई है तो जाहिर है कि ये ममलकत सऊदी अरबिया ने लगाई है और इस्लामिक मिनिस्ट्री बहुत सोच समझकर गहरी स्टडी करके, पिछले साल कुछ लोग भगाए भी गए थे, यहां अमीर अमीर का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। आज मैंने सुना कि एक मुफ्ती साहब पाकिस्तान के कह रहे थे कि सऊदी अरब में अमीर नहीं कहते क्योंकि वहां अमीर शहजादों को बोलते हैं, इसलिए तबलीगी जमात के जो जिम्मेदार हैं उनको अमीर नहीं बोलते, वहां फैसल बोलते हैं। हाँ, क्या कौन फैसल है भाई? यहाँ का कौन फैसल है? वहां का कौन फैसल है? तो फैसल की ताबीर चलती है खुफिया तरीके से। मैं समझता हूं कि अगर सऊदी अरब में एक शोबा दावत तबलीग का मौजूद है और वहां उलमा है, मशाइख हैं, वो अपनी जुबान, अहली जुबान को करते हैं। इसी तरह से उर्दू, हिंदी, पाकिस्तानी, इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच, पूरी दुनिया की जुबानों के दुआत यहां मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पे काम हो रहा है, हदीस पे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और यहां से अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से उन्हें पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत अपनी अपनी जुबानों में, इंडोनेशिया, हर जगह दावत दे रहे हैं। जब यहां एक सेटअप मौजूद है दावत तबलीग का, आप भी दावत देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, सऊदी अरब ने मैदान खोले हुए हैं, हम दुनिया भर के लोगों के लिए दावत का काम करें, लेकिन यहां की इजाजत लें। तो आप भी आइए, यहां मकातिब जालियात हैं, आइए वहां इंटरव्यू दीजिए। आपको दावत का काम करना है, तबलीग का काम करना है, तो आइए मुलाकात कीजिए, बैठिए, सर्टिफिकेट लीजिए, कहिए कि हाँ, लेकिन एक शर्त वही है कि यहां पे सबसे पहले अकीदा देखा जाता है, क्योंकि शरीयत मुतहरा के अंदर, इस्लाम के अंदर अकीदा सबसे पहले है। पहले नमाज नहीं है, पहले रोजा नहीं है, पहले हज नहीं है, पहले ज़कात नहीं है, ये सब की सब चीजें तौहीद के बाद हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज़ इब्न जबल को तबलीग के लिए यमन भेजा, तो आपने क्या फरमाया? अव्वल मा तदऊहुम, सबसे पहले जिसकी तरफ तुम उन्हें दावत दोगे वो ये होगी कि उन्हें इस बात की तरफ दावत दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फ़इनहुम अताऊका, और अगर फिर उसके बाद वो तुम्हारी इसमें इताअत करने लगे, यानी ईमान ले आए, मोमिन हो जाए, मुवहिद बन जाए, तब उन्हें बताना कि तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, फिर तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है, साल में एक दफा, जो मालिक निसाब हो उसके ऊपर ज़कात भी फर्ज है। तू खज़ु मिन अग़नियाइकुम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइकुम, तुम्हारे मालदारों से वो ज़कात ली जाएगी, गरीबों में तकसीम की जाएगी। इस तरह से अल्लाह के नबी ने, लेकिन अव्वल मा तदऊहुम, सबसे पहले तौहीद है, ये दावत का उसूल है। तौहीद क्या है? तौहीद ये ला इलाहा, इनकार, शिर्क का इनकार, कोई माबूद बरहक नहीं इल्लल्लाह। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उस्क़ा। अल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले तागूत का इनकार करो, जितने भी माबूदाने बातिला हैं जिनकी परस्तिश होती है, फिर उसके बाद ईमान लाओ अल्लाह तबारक तआला के ऊपर, तब जाकर के ये ईमान, तुम इनकार ही ना करो, शिर्क के अंदर मुलव्विस हो, अमली शिर्क के अंदर, एतकादी शिर्क के अंदर, तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद हो शिर्किया वाक़यात, तुम्हारा अपना अकीदा हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, बादलों में तशरीफ लाते हैं, दिलों के भेदों को जानते हैं, गैब जानते हैं, खिंजीर वाले मुंह के ऊपर हाथ फेर दें तो वो जनाब अली वो हो जाता है, जिस सही उसका चेहरा नूरानी हो जाता है, जिस नबी ने जिंदगी में किसी को हाथ, किसी औरत से मुसाफा ना किया हो, उस नबी को मरने के बाद एक औरत जो इसका पेट फूल गया, उसके पेट पे हाथ फेरते हुए आपके हजरत फजाइल में बयान फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
قبر سے ہاتھ نکال رہے ہیں، سب کی آوازیں سن رہے ہیں. کوئی شخص بھوکا آ کے ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کا مہمان ہوں، میں یہاں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے. پھر وہیں سو جاتا ہے. پھر خواب میں اللہ کے نبی آتے ہیں، اسے ایک روٹی دیتے ہیں. پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آدھی روٹی ختم، یعنی آدھی روٹی خواب میں کھا چکا تھا، آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں. یہ سب کیا عقیدے بیان کر رہے ہیں آپ؟ یہی نہیں، بہت سارے عقیدے. ترحم یا رسول اللہ، ترحم یا نبی اللہ، ترحم. رحمت کی بھیک مانگی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت مانگی جا رہی ہے. کیا ہے یہ توحید ہے. تو جب جماعت تبلیغ کے امیروں کا یہ حال ہے تو بیچارے جو جاہل عوام ہیں، دو چار چلے لگا کے بیچارے اپنے آپ کو علامہ آپ سمجھا دیتے ہیں ان کو، وہ کیسے ہماری بات کو سمجھیں گے جہاں توحید کا ذکر نہیں، جہاں. اور تبلیغ، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کے ہم مخالف نہیں ہیں. تبلیغ کا مخالف مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت و تبلیغ تو یہ دین اسلام ہی دعوت و تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو ہمیں پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا، اور اس کے بعد کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پیدا ہی کیا اس لیے تاکہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں. بھلا ہم کیسے تبلیغ سے روک سکتے ہیں؟ ہم کیسے تبلیغ سے لوگوں کو منع کر سکتے ہیں؟ یا مملکت سعودیہ عربیہ دعوت و تبلیغ کا تو اس کی بنیاد ہی دعوت و تبلیغ ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہی دعوت و تبلیغ ہے، یہ دین دعوت ہے، یہ دین تبلیغ ہے. بھلا اس سے کون بدقماش اس کے اوپر پابندی لگائے گا؟ البتہ تبلیغ کے پردے میں، تبلیغ کی آڑ میں، دعوت کے پردے میں کفر پھیلایا جائے، شرک پھیلایا جائے، الحاد پھیلایا جائے، بغاوت پھیلائی جائے، دہشت گردی پھیلائی جائے، آتنکوادیت پھیلائی جائے، یہ کبھی نہ اسلام برداشت کر سکتا ہے، نہ مسلمان برداشت کر سکتا ہے اسلام والے، اور نہ ہی کتاب و سنت پر مبنی یہ مملکت توحید، مملکت سعودیہ عربیہ برداشت کر سکتا ہے. اس کو نہیں برداشت کر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. تو پھر کوئی بھی جماعت ہو، چاہے اخوانی جماعت ہو، مودودی جماعت ہو، سب کے اوپر بریلوی جماعت ہو، کیونکہ ان سب کے اندر موجود ہیں یہ جراثیم خوارج کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے. کسی کے اندر کچھ، کسی کے اندر کچھ، کسی کے اندر کچھ داغدار ہے، سب موجود ہے. اور سب سے بڑا تقوی، یہ بات یاد رکھو مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، داڑھی دیکھ کے تقوی اور کرتا اور جبہ اور فلانا اور پگڑی اور امامہ دیکھ کر کے آپ تقوی اور پرہیزگاری اور محنت، پیدل جا رہے ہیں تو فلاں جا رہے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ کیسے یہ جماعت ایسی ہو سکتی ہے، کیسے وہ فلاں ہو سکتے ہیں، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ اتنے کر رہے ہیں، وہ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو شراب کی بھٹیوں سے، لوگوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں بدکاریوں کے اڈوں سے، لوگوں کو چوری چکاری، ان تمام سب چیزوں سے. میں تسلیم کرتا ہوں یہ سب باتیں. کہاں لا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ وہ جہاں تھے وہی بہتر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ جو تھا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تو خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ میں جس کے لیے جو گناہ چاہوں معاف کر دوں، قتل معاف کر دوں، چوری معاف کر دوں، بدکاری معاف کر دوں. بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو میں اسے معاف کر دوں گا، نہیں تو اسے جہنم میں ڈال کر اتنی سزا دے کر. یہ اہل السنہ والجماعہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا اس گناہ کبیرہ کرنے والوں کو، اور یہاں گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے، گناہ صغیرہ کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ گناہ صغیرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر سے معاف ہو جاتے ہیں. گناہ صغیرہ تو اللہ تبارک تعالیٰ وضو سے معاف کر دیتا ہے، سنتوں سے معاف کر دیتا ہے، نوافل سے معاف کر دیتا ہے، صدقہ اور خیرات سے معاف کر دیتا ہے. گناہ صغیرہ یوں معاف ہو جاتے ہیں. یہاں گفتگو گناہ کبیرہ کی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جہنم میں اتنی سزا دے کر پھر جنت میں. لیکن جو شرک پہ مرے گا، میرے بھائیو، اے میرے تبلیغی دوستو، اے میرے کسی بھی فرقے اور کسی بھی جماعت کے لوگوں، گالیاں نہ بکو، نہ تعصب کرو، ہمت کرو، شرک اور بدعات سے توبہ کرو. یہ کتاب شرک اور بدعات کے اندر بھری بڑی ملغوبہ ہے، یہ رکھا ہے، سمجھ رہے؟ اس کتاب کے اندر میں کیا کیا کھول کر کے آپ کو بتاؤں. یہ نشانیاں میں نے لگا کے رکھی ہیں، دیکھیں آپ، ایک نہیں سینکڑوں ہر جگہ. اور انشاءاللہ بہت جلد اس کی ڈاکومنٹری بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. عکس و آواز کے ساتھ اس کی پوری فوٹو کاپی بھی، اور اس کو پڑھ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس غلاظت سے، شرک کی گندگیوں سے نکلیں.
हम चाहते हैं कि उम्मत वाहिदा बने, उम्मत टुकड़े टुकड़े ना हो, फिरके फिरके ना हो। ये फिरका है, ये गिरोह है, ये जमातें, ये आपस में भी फिरके फिरके। दावा था कि हमें अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर, मज़हब पर हैं, फिर उनको हमारे मुल्कों के अंदर तकसीम कर दिया। ये देवबंदी हो गए, वो बरेलवी हो गए, वो मौदूदी हो गए, वो कादियानी हो गए, और ये जनाब अली तबलीगी हो गए, और उसमें भी कई कई गिरोह, कई कई जमातें हो गई। ये ममाती हो गए, ये हयाती हो गए। कोई अकीदा रखता है कि अल्लाह के नबी इंतकाल, ये देवबंदियों में, तबलीगियों में, और कोई अकीदा रखता है अल्लाह के नबी इंतकाल कर चुके हैं, मर चुके हैं, और कोई कहता है नहीं, अल्लाह के नबी जिंदा हैं, और ऐसे ही जिंदा हैं जैसे दुनिया में वो जिंदा थे। और उसकी दलील भी ये देखिए आप, इसी के अंदर फज़ाइल हज के अंदर मौलाना ज़करिया साहब ने क्या दिया है, ऐसे जिंदा देखिए आप, ये देखिए इसी के अंदर क्या कि बाकायदे वाकया लिखा ना फज़ाइल हज के अंदर, कि मैंने पिछले दर्स में बतलाया था कि किस तरह से वो हजरत आए और उन्होंने आवाज दी कि अल्लाह के नबी, अब पहले मैं आपके चौखट पे आता था और मैं जो है क्या कहते हैं बोसा लेके चला जाता था, अब मैं खुद आया हूं, रूह आती थी। हाँ, पहले मेरी रूह आती थी, आज मैं खुद आया हूं आपकी चौखट पर, अपना दस्ते मुबारक निकालिए और मैं उसे बोसा देना चाहता हूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र फटी और आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है हाथ निकाला और उन्होंने चूमा, बोसा दिया, और 50,000 लोगों ने देखा। यह अकीदा है इनका कि अल्लाह के नबी मरे नहीं है, अल्लाह के नबी ऐसे ही जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा अपनी कब्र में हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जैसे कि वो ख्वाब में रोटी दिया तो रोटी भी हाजिर, और बहुत सारी बातें बहरहाल। बल्कि यही नहीं, अल्लाह के नबी आसमानों में बदलियों में आते हैं, अपने आशिकों को, अपने चाहने वालों की मदद फरमाते हैं। ये सारे अकीदे शियों के हैं, राफिजियों के हैं, यही अकीदे बरेलवियों के हैं, सबों के हैं, इनके भी वही अकीदे। ये समझ कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो? हम आपको जन्नत की राह बतला रहे हैं साहब, अगर हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे दलील से बताओ, दलील दो कि ये सब यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही दीन है। अल्लाह उसके रसूल ने हमें यही बतलाया है, हमें बताएं आप ना, दलील दें, दलील से बात करें, गाली से बात ना करें। ये जुल्म है, ये जुल्म ना करें आप। अल्लाह के लिए अपनी आकबत को संवारो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ कि आप गलती पर कर, आप गलत कर रहे हैं। हम फिरका वारियत नहीं, फिरका वारियत आप फैला रहे हो, जमात दर जमात। दारुल उलूम देवबंद ने जब पाबंदी लगाई तो क्यों नहीं वावेला आपने मचाया? क्योंकि वो आपके अपने थे। ये और यहां सऊदी अरब ने तो बहुत पहले से पाबंदी लगाई, 25-30 साल से यहां पाबंदियां, 1982 ही से पाबंदी यहां लगी हुई है हर दौर में। लेकिन मोहब्बतन इकरामन ममलकत सऊदी अरबिया फुर्सत दे रहा था। आप लोग भी अंडरग्राउंड हो गए, तबलीगी जमात के जो लोग थे ये अंडरग्राउंड हो गए चुपचाप। अब गली कूचों में, घरों में, इधर से यहां भी हाल में भी और दूसरे शहरों में भी। हमें क्या नई रिपोर्ट है, लेकिन हम कहते हैं जाने दो, जाने, हम जासूसी नहीं करते, माफ करना। हमें आपने कहा रियाली है, वो खा रहा है, रियाल खा रहा है, चमचा है, फला है। अजीजान गिरामी, कुछ भी कह लो आप, आपके मुंह में जुबान है, कुछ भी कह लो, लेकिन हमें बुरा नहीं लग रहा। इसलिए बुरा नहीं लग रहा है कि हमें आपसे दर्द है, हमें आपसे मोहब्बत है। हम आप लोगों से इखलास के साथ गुफ्तगू करते हैं। हमारा दीन गाली नहीं सिखाता है, गाली देने वालों को दुआएं देता है। हमारा दीन पत्थर मारने वालों को दुआएं सिखलाता है। आप क्या, इंसान कब जब आराम और आशाइश में रहे तो उसका इम्तिहान नहीं होता, मुसीबत में पता चलता है कि सच्चा खरा है कि खोटा है। ये शायद अल्लाह ताला ने लिए यमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यब, ये जो ममलकत सऊदी अरबिया, ममलकत तौहीद ने जो पाबंदी लगाई है ना, ये इसी खबीस और अच्छे और बुरे के तमीज के लिए, कौन है अच्छा कौन बुरा है समझ में आ जाता है, कौन तौहीद परस्त है। तौहीद है, सबसे पहले तौहीद है। अलगरज खैर, अल्लाह ताला ने, मैं सवाल जवाब के ऊपर आना चाह रहा हूं, मैं ज्यादा लंबा इसमें अपनी तकरीर में नहीं लेना चाह रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और कुरान की आयत पढ़ूंगा मैं। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि जो भी शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह के सिवा गैरों से इस्तिफादा, इस्तिमदाद और मदद और ताउन और वसीला और फलाना और ढकाना लेने करके, याद रखिए, मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके ऊपर हराम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार व मअवाहु अन्नार,
अल्लाह ने ताकीद दर ताकीद फरमाई, जन्नत हराम, उसका ठिकाना जहन्नम, और इन जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अजीजान गिरामी, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब मरो तो इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, फर्मा बरदार। मुसलमान का मतलब फर्मा बरदार हो अल्लाह के, रसूल की, कुरान और सुन्नत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जब बात करो तो भली बात करो। भली बात क्या है मालूम है? फ़इन्न खैरल हदीस कलामुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खुतबे में यह पढ़ा करते थे, ये मेरे बाप की हदीस नहीं, ये मेरे घर की नहीं रिवायत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है। व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बेहतरीन हिदायत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है। ये इसको लाजिम पकड़ो। कौलन सदीदा, भली बात कहो, अल्लाह रसूल की बात करो। युस्लिह लकुम अमालकुम, जब ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल भी दुरुस्त कर देगा। व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे खताओं गुनाहों को भी माफ कर देगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इनाम है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वही कामयाब है। और सबसे बड़ी कामयाबी जहन्नम से बचना है, समझ रहे हो, और जन्नत के अंदर जाना है। जिसे अल्लाह जन्नत में डाल कर वो कामयाब है, जो जहन्नम से बचा लिया गया। इसलिए बहाने ना करो, हीले ना करो, अपनी जमात की, अपने मौलवियों, किसी की वकालत मत करो। साथ देना है तो अल्लाह का फरमान याद रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों की सोहबत में बैठो, सच्चे लोगों की गिरोह में आओ, सच्चे लोगों की जमात में आओ। झूठे लोग, जिनका फरमान झूठा, जिनके अकीदे झूठे, जिनके ईमान झूठे, जिनके किस्से कहानियों का और ख्वाबों की बारातों पर जिनका धर्म, जिनका मजहब, और जिनके यहाँ तावीलात फासिदा, उनकी अकलियां, मौलवियों के पीछे चलना उनका अपना, ऐसे लोगों की सोहबतों में ना बैठो। सच्चे जो बोल रहे हैं, ईमान के सच्चे हों, जुबान के सच्चे हों, अकीदे के सच्चे हों, कुरान और सुन्नत में सच्चे हों, अल्लाह के साथ सच्चे हों, रसूल के साथ सच्चे हों। ये नहीं कि हम तो आशिक़ रसूल हैं और काम हो रहा है शैतान का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमान और अकीदा ये अहम है, सबसे पहले ये सुधारो, उसके बाद आमाल की बात आती है। आमाल अल्लाह तबारक व तआला अच्छे और बुरे जितने भी होते हैं अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और जिसको चाहे उसको सजा दे, माफ करे, उसकी मर्जी, लेकिन शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। और ये चंद बातें बतौर नसीहत हम आपके लिए लेके आज बैठे थे। फिर उसके बाद सवाल जवाब देखते हैं कि हमारे भाइयों का सवाल जवाब क्या है। और फिर ये देखिए गालियां फिर शुरू हो गई कि साहब यहूदी है, ये रियाल खोर है, ये क्या क्या गालियां दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत, अभी मैंने आपको बतलाया, लेकिन ये असल में एक गैंग है, पूरी गैंग है, समझ रहे हैं। ये गैंग है जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं, गालियों का, और ये सब तबलीगी जमात, अब पता चल रहा है, इनकी हकीकत अब खुल के आ रही है। अब देखते रहिए, आप खुद देखें, कोई गाली दे रहा है, क्या कहेंगे, कौन है ये बदरुद्दीन, क्या क्या गालियां दे रहे हैं, साले, बहनोई, माँ, बहन, फज़ाइल अमाल किसी ने लिखा है, सही बात है, खुद ही नजर आएंगे। जफरुल्लाह खान साहब लिखते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। कोई सवाल है तो बेशक सवाल लाएं इधर। क्या है शेख, ये बताएं कि क्या, पढ़ो भाई। शेख ये बताएं कि सऊदी ने तबलीगी जमात के अफकार नज़रिया अकायद की वजह से पाबंदी आयद की है, ये समझ में आता है, मगर इनको दहशतगर्द क्यों कहा गया? बराए मेहरबानी जवाब देकर शुक्रिया। असल में इनके यहाँ दहशतगर्दी मिली, यहाँ पे आप सब बातें सबको तो नहीं बताई जाती, ये राज की बात रहती है, मामला है इनके पास अपना इतना, एक घर चलाने के लिए आदमी के पित्ते पानी हो जाते हैं, खानदान को कंट्रोल करना है या तो पूरा मुल्क कंट्रोल करना है। असल में यहाँ पे जो इख्वानी थे, इख्वानी या जमात इस्लामी पर, उनकी लिटरेचर पर यहाँ पाबंदी लगाई गई। ये सब खुफिया तंजीमें यहाँ बैठ बैठ करके मोसाड के अंडर में या किसके अंडर में बैठ बैठ घरों में अपनी अजमी लोग हैं या इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग अपने अपने जो फिरके वहां बनाए हुए हैं, उनको यहाँ पे अपने अपने खास खास कंपनियों में इधर उधर चोरी छुपे सब करते थे। और
तबलीगी जमात वाले थे, इनके अंदर पकड़े गए दहशतगर्द। उसकी वजह यह थी कि दाइश, आपको पता ही है कुछ दिनों पहले मौलाना सलमान साहब नदवी हिंदुस्तान के जो हैं वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के, उन्होंने तो बाकायदा एक लेटर भी लिखा था ना दाइश को कि हम आपको अमीरुल मोमिनीन मानते हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हम आपके साथ हैं और हम आपको ये करेंगे, हम आपको पूरा जहां गोलियां चलेंगी वहां हमारे सीने होंगे, तो ये होगा, हम पूरे हिंदुस्तान के नौजवान की नुमाइंदगी और ये और वो, इस तरह से इन्होंने दावा किया था। और तबलीगी जमात जाहिर है इसके अंदर मुलविस थी। ये सब वही लोग हैं चट्टे बट्टे, आज जैसे कि सलमान साहब उन्हीं की तारीफ उसमें लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनके अंदर जा करके जब यहां पकड़ धकड़ शुरू हुई तो बहुत सारे इनके अंदर पकड़े गए दहशतगर्दी के अंदर। तब और आलमी तौर पर भी आपको पता ही है दहशतगर्दी किसको कहते हैं, कहीं बम फोड़ना यही दहशतगर्दी है। आप देख लीजिए, अब ये दहशतगर्दी नहीं है जो आप हमें गालियां दी जा रही हैं तबलीग के नाम पर और हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमें मां बहन बेटियों की गालियां, ये दहशतगर्दी नहीं है। गाली देना दहशतगर्दी नहीं है। आप देखना है तो देखिए कहां कहां नहीं दहशतगर्दी कर रहे हैं ये सब जगह, जहां इनके हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मेरे पास ये वीडियोस मौजूद हैं, आपको मैं दिखाऊं कि बाकायदा ये मस्जिदों को जमीबोस कर देते हैं। अहलुल हदीस की जो मस्जिद है जो शिर्क और बिदअत के खिलाफ बोलते हैं, उनकी मस्जिदों को ढा देते, कहते हैं मस्जिद ज़रार, एक नहीं दसियों मस्जिदें इन्होंने तोड़ी पाकिस्तान के अंदर, स्वात के अंदर, और वहां भी क्या कहते हैं मस्जिदों को तोड़ा गया। बहुत सारे यही करते हैं अपने खिलाफ किसी चीज को। आज देखिए सऊदी अरब के खिलाफ कहते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान बेकरार हैं। कौन कहता है पूरी दुनिया? ये पूरी दुनिया है, ये एक कम्युनिटी है वो बेकरार। लेकिन खतों के अंदर, रसाइल के अंदर और पैगाम के अंदर सऊदी अरब को यह बावर करवाया जाता है कि पूरे दुनिया के मुसलमान बेकरार हैं एक जमात के ऊपर पाबंदी। नौज बिल्लाह, हम बेकरार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी है कि अल्लाह के फजल करम से कुफ्र और शिर्क के ऊपर मबनी, बिदात के ऊपर मबनी जो तंजीम है, जो भी तंजीमें हैं, किसी कोई भी सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर बैंड है और बैंड लगनी चाहिए ताकि दुनिया वालों को सही दावत और सही दीन लोगों तक पहुंच सके। दुनिया चंद दिन की है, यहां किसी को नहीं रहना है। ये दुनिया इन्नमल हयात दुनिया लहव व लइब, ये दुनिया की जिंदगी लहव लइब है। अल्लाह ताला इस दुनिया को फना करने वाला है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। हमारी दावत उस जिंदगी को बनाने के लिए, यहां जैसे भी झूठा रूठा सूखा जो भी खा लिया, जो पी लिया, भूखे प्यासे जैसे भी रह लिए चलेगा, लेकिन आखिरत में अगर हम नहीं बख्शे गए तो कोई फायदा नहीं है। हमारे अमाल हमारे मुंह पे मार दिए गए, कोई फायदा नहीं। इसलिए हमारी दावत वहां के लिए, यहां के लिए हमारी दावत नहीं। तो अलगरज हमें इससे कोई वो नहीं है। और फिर सऊदी अरब का अपना ये मामला है दीनी मिनिस्ट्री ने। बहुत सारे लोग हमारे मौलवी हजरात भी बैठ करके चापलूसियाना और गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं हम उम्मत वाहिदा हैं। उम्मत वाहिदा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, शर्म करो, हया करो, शर्म। किताब और सुन्नत पर अगर एक शख्स भी है तो वो उम्मत है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम को उम्मत क्यों कहा पता है? इब्राहीम तने तनहा एक गिरोह है, एक जमात है। क्यों? इसलिए कि उनके दौर में कोई मुसलमान नहीं था सिवाय उनके। अल्लाह ने उन्हें एक उम्मत कहा। आप कौन से शिर्क और बिदात और कुफ्र पर मबनी जमात को आप उम्मत वाहिदा का लक़ब दे करके बैठ के भाजर दे रहे हैं, बैठ के चापलूसियां कर रहे हैं अपने स्टेज पर? आपको जो है शर्म आनी चाहिए। अगर आप किताबों सुन्नत के दाई हक बोलिए, लोगों को गुमराह न कीजिए अपने चंद टकों के लिए या अपनी जमात या अपनी वाहवाही लेने के लिए। दुनिया जहन्नम में जाए और आप बैठ के तमाशा देखें, हमारा भाई डूबे, हमारा भाई अंगार में जले, हमारा भाई जहन्नम की तरफ जाए और आप बैठ करके कहें नहीं उम्मत वाहिदा है, तालियां बजाएं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमें यह बर्दाश्त नहीं होगा, हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोगों को हक बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ बोले तो हमें पकड़ो। दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। हम कोई कोने में बैठ कर बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया वालों को हम ऐलान कर रहे हैं अगर झूठ है, अगर गलत है तो हमें समझाओ, हमें बताओ ये झूठ है, ये गलत। गालियां देने से कोई सही बात गलत नहीं हो सकती, माफ कीजिएगा। गाली दे करके एक हकीकत को आप नहीं छुपा सकते हैं। किसी को कत्ल करके, किसी को धमकी देके, किसी को मां बहन बेटियों की इज्जत व आबरू लेकर आप अपना अंदर का खुब्स जाहिर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जाहिर करवा रहा है। ये हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसके। इसलिए शिर्क ना करो, बिदात ना करो, ये हमारी दावत है, सबसे पहली दावत है। चोरी चकारी बदमाशी ये बात की बात है, वो भी हराम है। जो हराम है उससे बचो, हत्तर इम्कान बचो। लेकिन शिर्क और बिदात जिससे कि अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, इससे दूर रहो।
हो सकता है, उम्मीद फिर की जा सकती है कि तुम बख्शे जाओ। तुम स्टेजों पे बैठ करके मौलवी हजरात को भी मैं दरखास्त करूंगा, जहेज ये वो दुनिया बयान कर रही है, आज जरूरत है बर्रे सगीर के अंदर, आज हमारे कौम के अंदर हमारी जुबान बोलने वालों को कि तौहीद की बात को खोल खोल करके बयान किया जाए। उन बेचारों को पता नहीं है, दरगाह पूज रहा, कोई शद्दे पे झुक रहा, कोई औरत जाके नजरो नियाज, मन्नत, तावीज, गंडे, पलीते, कुरान फाड़ फाड़ करके तावीजें दी जा रही हैं। कुरान को तावीज बना करके जो कमर के अंदर बांध लो, नाक के नीचे लटका लो, हकीम उल उम्मत और पता नहीं कौन से उम्मत बयान कर रहे हैं अपनी अपनी किताबों में, क्या क्या बदमाशियां और शरारतें ये लोग कर रहे हैं। हम बैठ करके ये ठंडे पेट तमाशा देखें, हम आपको बताएंगे, आप गाली दो, आप मारो, आप पीटो। हमारे नबी ने भी तौहीद की बात बताई थी तो उनको भी तकलीफें दी गई, जवान बेटियों को तलाक दिलवाकर घरों में लाके बिठाया गया, अल्लाह के नबी को मार मार के लहूलुहान किया गया, अल्लाह के नबी बेहोश भी हो गए। क्या क्या नहीं जुल्म इन मुशरिकों ने किया है। जो मुशरिक होता है, जो बिदती होता है, वही गालियां देता है, यही मार धाड़ कत्ल खून की बात करता है। जो मुआहिद होता है, मुत्तबे सुन्नत होता है, वो सीरत रसूल का पाबंद होता है, वो सब्र करता है, वो बिलाल हबशी बनता है, वो सुहैब रूमी बनता है, वो सलमान फारसी बनता है, उनके नक्शे कदम पे चलता है, वो अबू बकर, उमर, फारूक, अली, रिज़वा और तलहा, जुबैर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के रास्ते पर होता है। और जो मुशरिक होता है वो अबू जहल और अबू लहब के रास्तों पर होता है, कत्ल करो, खून करो, मारो, धमकियां, मां बहन की गालियां, यही सब तुम्हारा दीन है, यही धर्म, यही इस्लाम है। और यकीनन यही इस्लाम तुम्हारा है। हमारा इस्लाम इससे इबा करता है, इनकार करता है। ना हम आपको गाली देते हैं, हम अगर ये गाली है हक बात बोलना, शिर्क का इनकार करना, बिदात का रद्द करना, अगर ये गाली है तो माफ करना, ये गाली हम एक दफा नहीं 1000 दफा देंगे। ये गाली अगर आप इसको समझते हो तो फिर आप अपने ईमान की खैर बनाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हम आपको जहन्नम से डरा रहे हैं, हम आपको आग में नहीं जाने देना चाह रहे। मुझे भी बताओ, अगर मैं आग में जा रहा हूं मुझे भी बताओ। गालियां दे दे करके आप अपनी आकबत बना रहे हैं। आपकी आकबत तो नहीं बन रही, अलबत्ता बंदे नाचीज की आकबत जरूर बन रही, कोई बात नहीं जी। और क्या सवाल है? कोई सवाल नहीं, सब एतराज़ात है। क्या एतराज भी क्या है? काश रियाल की मोहब्बत में इतना झूठ ना बोलते। लानत हो झूठ बोलने वाले पर, और लानत हो इसी बात कहने वाले पर। मज़ारात ने निशान कर दिए और सलमान खान के हाथों के निशान। अभी मैंने सलमान खान जन्नती, उसके खानदान को जन्नती सर्टिफिकेट, या आपने अपने अमीर साहब को नहीं देखा? अभी फिर दिखाऊं मैं आपके अमीर साहब को? हैं कहां हैं आप? ये तबलीगी जमात के अमीर सलमान साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं, जन्नती कहें, आपको नहीं मालूम है? सीरियस हो गया था, अल्लाह ने जिंदगी लिखी थी, हाँ? अल्लाह ने बचा लिया। तो वाकई ये सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये आपके अमीर साहब हैं, मेरे वीडियो देख लीजिए आप इनको कहिए। हैं आप सऊदी अरब में क्या, सऊदी अरब को सऊदी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहां कुरान सुन्नत का निफाज चल रहा है। जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर चले खैर, ये तो आप जो है ना, असल में क्या है, सऊदी अरब के ऊपर चौतरफा हमला क्यों है पता है आपको? इस हकीकत को भी समझने की जरूरत है। ये एक बहाना है, वरना बुग़्ज़, हसद, देखें बरेलवी शिया सरे-फ़हरिस्त सऊदी अरब से दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि वो कुब्बे और गुंबदें तोड़ी गई तो सिर्फ शियों ही को तकलीफ नहीं हुई, हमारे उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली भी हिंदुस्तान बर्रे सगीर से उस वक्त आए थे मलिक अब्दुल अजीज के जमाने में, और मतलब एतराज किया था कि ये आज मज़ारात मुक़द्दसा हैं, ये हैं, फलां हैं। उस वक्त मलिक अब्दुल अजीज ने कहा था कि अगर ये तो गारे और मट्टी से बनाए गए हैं, अगर आप हमें इसके जवाज का कुरान और हदीस से कोई एक दलील दे दें तो हम इन्हें सोने की ईंटों और चांदी के गारों से बनवा देंगे। लेकिन सब मुंह लटका लटका के चले गए। तो ये लोग शिये राग़ज़ी तो बहरहाल हर साल बक़ीए गरक़त का दिन मनाते हैं और गालियां बकते हैं सऊदियों को। एक तो इनको दुश्मनी है अकीदे की, दूसरे बरेलवियों को भी दुश्मनी है, कब्र परस्ती यहां नहीं है, वरना अपने मुल्कों के अंदर तो नाच और भंगड़े और कव्वालियां और मलंगे और चमटे और सब कुछ मज़ारों पे जायज है, सब कुछ कर रहे हैं, वो वहां जायज है। ठीक है, ये तो एक बहाना मिल गया इनको, ये एक्स्ट्रा का प्रोग्राम या जो भी प्रोग्राम हुआ, हालांकि यहां हर जगह नहीं, वो जहां हुआ सऊदी अरब में रियाद में या जहां हुआ वो वहां वो उनके जिम्मेदार हैं। नंबर 3 इनको दुश्मनी, नंबर 3 ये बेचारे तहरीकियों को दुश्मनी, इखवानी और ये मौदूदी, क्योंकि इनके ऊपर भी बैंड लग गया, इनकी भी जमात के ऊपर पाबंदी लग गई यहां पे, और चुपके चुपके अंदर अंदर अपना जो है खवारिज के जरासीम बो रहे हैं, तो इस तरह इनको दुश्मनी थी। चौथे तौर पर ये तकलीदी मजहब के जो लोग, जो मलिक अब्दुल अजीज आए रहमतुल्लाह अलैह, खाने काबा के अंदर 4 मुसल्ले, इधर मुसल्ला उधर मुसल्ला उधर मुसल्ला,
कायम दायम था। आप सबको पता है मलिक अब्दुल अजीज जब आए और एक मुल्क को मुकम्मल किया, जजीरतुल अरब के ऊपर अपना कब्जा हुआ, हरमैन शरीफैन के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह शिरकियात और बिदात का खात्मा हुआ। वो चारों मुसल्ले हटाकर एक वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फरमान के मुताबिक मकाम इब्राहिम को एक मुसल्ले के ऊपर सबको खड़ा किया। तो ये जितने तकलीदी मज़ाहिब के लोग हैं उसी वक्त से जले भुने कटे, उनको कोई चांस तो बहुत था, लेकिन अब आज इनको बहुत चांस, अब सब बहती गंगा है ना, सब हाथ धुल रहे हैं, ये भी हाथ धुल रहे हैं। तो ये दुश्मनियां चारों तरफ से ममलकत तौहीद, ममलकत तौहीद सुन्नत की, ये सब दिलों के अंदर बुग़्ज़ ले लेके बैठे हुए मौके की तलाश और जुस्तजू में मुनाफिकत करते हुए यहां आते हैं, सब कुछ करते हैं मुनाफिकत, और मुनाफिकत की वजह से बचे हैं। और फिर आज ममलकत ने जब इन तमाम से पर्दों को फाश किया और ये दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा राज और नेटवर्क जब इनके अंदर से निकला ममलकत के अंदर, चाहे दूसरे मुल्कों में ना हो, चल वो कोई मसला नहीं, लेकिन ममलकत के अंदर जब निकला तो ममलकत ने उसको बैंड कर दिया दहशतगर्दी। और ममलकत ने यह नहीं कहा कि यह दहशतगर्दी का दरवाजा, यानी जो दहशतगर्द है इनमें जा जाके बैठ रहे हैं, इनमें जा जाके बैठ रहे हैं, और वो लोग पनाह लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, और ये लोग उनके साथ चल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसा है ये। और बाज लोग तो कहते हैं कि जी ये आलमी तौर पर बड़ी अमन पसंद है, ये पसंद, हम अपने मुल्कों में जानते हैं कितनी अमन पसंद है, क्या बताएं हम, कभी मौका आएगा। और मौका क्या, वीडियो वायरल है, आप देखिए, मस्जिदें इनके खिलाफ ढा देते हैं, ऐसी सी हरकतें, औज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि एक गैर मुस्लिम भी मुसलमानों के साथ वो काम नहीं करता जो ये, जब हमारे तबलीगी चंद भाई, सब नहीं, जिसको नहीं मालूम है छोड़ो, नहीं, लोग करते हैं, जहां इनका बस चलता है, अक्सरियत रहती है, वहां मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, और आपस में भी इसीलिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह का कहर नाजिल हुआ, और आपस में भी ये लड़े, आलमी तौर पर पूरी दुनिया में रुसवाइयां हुई, बदनामियां हुई, मरकज निज़ामुद्दीन का अलग, मजलिस शूरा का अलग, आपस में टकराव, दाढ़ियां कैंचियों से काटी गई हैं, वीडियो मौजूद है, वायरल है, आप देखिए, तबलीगी पकड़ पकड़ के एक दूसरे की दाढ़ियां तक काट रहे हैं, इतनी दुश्मनी। लात और मुक्के और मजलिस मुशावरा शूरा और आपस में लड़ गए, और देवबंद ने पाबंदी लगा दी। ये अल्लाह ताला, ये देखें, जहां तौहीद नहीं है वहां यही सब हरकतें होंगी, जहां पे मकसद है, मनफात है माली। अब यह है कि उल्टा चोर को सवाल को डांटे, हमको भी ये सब चीजें कर दे रही हैं, करने दो, बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे। तो ये दुश्मनियां चौतरफा जो हमले ममलकत सऊदी अरबिया पे हो रहे हैं, ये कोई नए नहीं है, ये पुराने बुग़्ज़ और हसद नए, जब मौका मिलता है, ये आर्केस्ट्रा नाच गाने कोई आज हो रहे हैं क्या, यहां भी म्यूजिक चल रही है, चलते हैं, पहले से चल रहे हैं, उसका एक शोबा है अपना, जो उसके चाहत करने वाले हैं वो हैं, कर रहे हैं, वो उनका अपना है, वो अल्लाह ताला के यहां वो जिम्मेदार होंगे, अल्लाह ताला के यहां वो पकड़े जाएंगे। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं ये पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे, आप अपनी अपनी खबर खैर बनाएं और अपना अपना देखिए। अलबत्ता यह है कि हमें जिस बात का, और फिर यहां इस्लामी हुक्मरान है, उनके खिलाफ किस तरह से काम करना है और कैसे उनको दावत देनी है और कैसे उनको समझाना है, ये बाकायदे शरीयत ने एक नक्शा बताया है, एक मसला बताया है, बाकायदे उसकी तरतीब है, सिस्टम है कि आप उलाते उमूर, जो हुक्मरान है, जो हाकिम है, आप उन तक कैसे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करेंगे, और किस तरह से, ये तमाम सब चीजें हैं, समझ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां मशाइख वो सब काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनकी जुबान समझते हैं, वो उनकी जुबान समझते हैं। आप मुझसे कहे तो मिंबर पर खड़े होकर के आप जरा अपने मुल्कों के अंदर गालियां दीजिए, अपने हुक्मरानों को भी पता चलेगा कि आपका क्या हशर होगा। मिंबर पे नहीं, मिंबर के नीचे ही आपका जो हशर होगा वो तो देख ही रहे हैं हम। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इतने आग न बरसाओ आप, और इतना उछल कूद न करो। शैतान, मैं तो समझता हूं कि शैतान ये तमाम सब चीजें कर रहा है, और शैतान आप लोगों को मुश्तिल और कर रहा है, भड़का रहा है। वरना एक मोमिन जो होता है, एक मोमिन का आईना होता है, भाई होता है। हम आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं। हम आपको एक ऐसे गुनाह और एक ऐसी अल्लाह के गजब से डरा रहे हैं कि अला अदुल्लुकुम अला अकबरिल कबाइर, तमाम कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल इशराकु बिल्लाह, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आप ये छोड़ दो, शिर्क बिल्लाह, तौहीद पे आ जाओ, बिदात छोड़ दो, सुन्नत पे आ जाओ। तबलीग का कोई मुनकिर नहीं, न ममलकत सऊदी अरबिया मुनकिर है, न कोई दाई हम मुनकिर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद दावत तबलीग में। और अगर आपको तबलीग बहुत पसंद है, हमें आप इजाजत दीजिए, आऊं मैं निजामुद्दीन के अंदर, या आप हमें अपनी जमात में दाखिल करें, लेके चलें, हम तबलीग करते हैं, करने देंगे आप हमें, आप इजाजत दें कि हम तबलीग करें,
आते हैं, हमें बुलाएं आप कि आप आइए और बाकायदे हिफाजत के साथ, जी जनाब अली आप खुद कंट्रोल करें और हम दावत देंगे वहां कुरान और सुन्नत की। बुलाए आप हमको, हम तबलीग करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और बताएंगे हम उनको। और हम क्या बताएंगे पता है आपको, ये भी बता दूं मैं, जो आप नहीं बताते वो हम बताएंगे शिर्क क्या है, और खोल खोल करके ये भी बताएंगे। इजाजत देंगे आप? बताएंगे, इजाजत देंगे कि इसके अंदर ये शिर्क है, इसके अंदर ये कुफ्र है, ये इसके अंदर ये इल्हाद है, ये शिरकिया अकीदा है, या ये कुफरिया अकीदा है, ये सब बताएंगे हम। जी क्यों? तौहीद सबसे पहले है, हमारा मनहज है कि सबसे पहले तौहीद है। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज था, यही तमाम नबियों का। वमा अर्सलना मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि, हमने हर रसूल को यही बात बताई है कि जाके लोगों को बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं है, सारे झूठे हैं, सिर्फ अल्लाह सच्चा है। समझ गए? बहर जी, बाकी और कोई सवाल जवाब? हजरत एक बात तो, हाँ क्या है वो? जब कोई पाबंदी नहीं थी सऊदी अरब में तबलीग जमात पर, तो उस वक्त तक सही थे। इस तबलीग ने, जब तुम्हारे बाप ने पाबंदी आयद की तो अब तुम्हारे फतवे जारी हो गए, डूब कर मर जाएं, कुत्ते की तरह भूख रहे हो बदनस्ल। कौन है ये? हाफिज नूरुद्दीन बनगलानी साहब हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे, आपकी गालियों को अल्लाह हमारे मीज़ान हसनात में बनाए, नेकियों बनाए। मैंने बताया 1982 ही से, और इससे पहले भी यहाँ ममनू था शिरक और बिदअत। अभी और बात है कि लोग जाहिर खुल्लम खुल्ला तो नहीं थे, जब पकड़े गए कुछ लोग तो ये तमाम सब हुआ। अब आप मुझे कुत्ता कहें, जो भी कहें, आपकी मर्जी है, आपके मुंह में है। अल्लाह ताला, आप अपना ज़र्फ या अपना दिल जाहिर कर रहे हैं, अल्लाह आपको हिदायत दे। बंगलानी साहब हाफिज हैं आप, अल्लाह से डरें, कुरान है आपके सीने में, जुबान को कंट्रोल करें, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये कौन है? नसीबुल्लाह साहब। मौलाना तारिक जमील मोहब्बत करते हैं, आपकी तरह नफरत नहीं फैलाते हैं। कारी साहब अभी आपने नफरत का तबलीग शुरू किया है, जवाब देना था। अरे यार, तबलीग करने से कौन मना करता है? अल्लाह के बंदे, कौन सी नफरत? हम शिर्क और बिदअत से आपको नफरत दिलाते हैं भाई, तो आप तौबा करो ना शिर्क और बिदअत से, तौबा करो इन किताबों से, तौबा करो तबलीगी जमात से जो शिर्क और कुफ्र के मलहूमों पर बनी हुई है, तौबा करो ना। क्यों नहीं तौबा करते? और आपको इतनी मोहब्बत है तो आप, बाद लोग कहते हैं कि साहब वो बहुत ज्यादा लोग हैं, कसरत में हैं और नमाजें पढ़ते हैं, अजान। अरे नमाज तो बोहरी भी पढ़ता है, सारे पढ़ते हैं, दूसरे फिरके वाले भी, कादियानी भी पढ़ते हैं नमाज, वो भी अजान देते हैं, बरेलवी भी पढ़ते हैं, बरेलवी। तो ये सब क्या है? ये सब नई चीजें, गलत बात। हम कोई नफरत वफरत नहीं फैला रहे, हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। ये मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। सलमान खान को अगर हजरत जमील साहब बोले, तारिक जमील साहब, तो वो मोहब्बत है। सऊदी अरब, सपोज हम उसके कायल नहीं हैं, लेकिन सऊदी अरब ने, अगर सऊदी अरब के एक मिनिस्ट्री ने अगर टूरिज्म ने उसको दावत दे दी, तो आप जो है वो कह रहे हो कि ये काफिर हो गए। गुनाह करने से, ज़िना करने से, शराब पीने से, बदकारी करने से कोई आदमी काफिर नहीं होता, मुशरिक नहीं होता। समझ में बात आई? अलबत्ता ये अकीदा जो इस किताब के अंदर मौजूद है ना, इन अकाइद जो मैं आपको क्या मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मेरी वीडियोस मौजूद हैं। वे आज से 25 साल पहले, 28 साल पहले, आप कह रहे हो आज आप बोल रहे हो, जब पाबंदी उबंदी का मुझे भी पता नहीं था। आज से 28 साल 32 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के ऊपर सीडियों के अंदर तबलीगी निसाब, फजाइल जिक्र, फजाइल हज, सबका ऑपरेशन मौजूद है। जाके देखो, समझो, किताबें खोल खोल के पढ़ो। बहुत सारे भाइयों और बहनों को अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है, आपको भी हिदायत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे गाली बकोगे तो ऐसे ही जहन्नम में चले जाओगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्या है वो? शेख मोहतरम, सवाल यह है कि क्या मुसलमानों का आपस में कभी एक दूसरों को बुरा भला कहना, एक दूसरों को बिदती और काफिर कहना बंद नहीं होगा? भाई देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरके होंगे, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। ये गाली सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। पूछा गया मा हिया रसूल, वो फिरका कौन सा है? क़ाल मा अना अलैहि अल-यौमा व सहाबी, आज मैं जिस दीन पे हूं, क़यामत तक जो लोग उसी पे रहेंगे वही जन्नत में जाएंगे। तो आप देख लो कौन है अल्लाह उसके रसूल के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रास्ते पर, जो उनके अकीदे और जो उनके अमल के मुताबिक है, वो जन्नती जमात है। और जो नहीं है, अल्लाह के नबी ने बता दिया कि सब जहन्नम में जाएंगे, फिर बात ही खत्म। तो ये
یہ تو رہے گا ہی امت کے اندر، یہ فتنہ آج کا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کون تھے پتہ ہے نا آپ کو؟ کون تھے؟ وہ سارے بلوائی کلمہ پڑھنے والے، مسجد کے اندر نبوی کے اندر اذان دینے والے، امامت کرانے والے، پانچوں وقت کی جماعت کرانے والے تھے. وہ خوارج کون تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، اگر میں انہیں پا گیا تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا. یہ کون تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، اتنے سینت کے نماز پڑھنے والے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابلے میں تم حقیر سمجھو گے. میرے صحابہ اتنے سینت کر سوار کر نماز پڑھیں گے، اتنے پرہیزگار ہوں گے، لیکن یمرقون من الاسلام کما یمرق الرمیہ کما یمرق السهم من الرمیہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکار کو چھو کر کے نکل جاتا ہے. یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. آپ کیا سمجھ، آپ تاریخ پڑھیے اسلام کی. شرک و بدعت یہ کبھی اس سے اسلام نے سودا نہیں کیا ہے، یاد رکھو. نماز، روزے، حج، زکات بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ معیار نہیں ہے حق سمجھنے کا. سب سے پہلے معیار توحید ہے، ایمان اور عقیدہ ہے. ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا، اسی کے بعد اتحاد ہوگا اور اسی میں امن ہوگا، اسی میں شانتی آئے گی. ایمان اور عقیدہ ہی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے کسی بھی معاملے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں درگاہ پوجنا ہی شرک ہے؟ ارے میاں یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے کہ اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، بلکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، یہ عقیدہ رکھنا تو کفر ہے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آئے، جنازے کی نماز پڑھی گئی. حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی انتقال کر چکے ہیں، مر چکے ہیں. یہ کون سے جماعت کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، ہاتھ بھی نکالتے ہیں، بدلیوں میں بھی آتے ہیں، عورت کے پیٹ کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، لوگوں کو روٹیاں بھی بانٹتے ہیں. یہ کون سا عقیدہ بھیا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ، شباشیہ فرماتے ہیں. یہ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں بتائیے. آپ اس اسلام کو پسند کرتے ہیں تو کیجیے، آپ کی مرضی ہے. ہم اس اسلام کو منع کرتے ہیں، آپ کا روکتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں، یہ سب کفر ہے، یہ سب شرک ہے. تو آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں برا بھلا کہیے، کوئی بات نہیں. پھر آپ اعتراض کریں گے صاحب یہ کب ختم ہوگا؟ یہ ختم تھوڑی ہوگا، یہ قیامت تک چلے گا. امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالاختبار ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت میں جب فساد پیدا ہوگا اس وقت میری سنت کو پکڑنے والا وہی کامیاب ہوگا. یاد رکھو. میرا خیال ہے کوئی معقول سوال نہیں ہے. گالی ولی بھی ہے یار تم، یہ خیر یہ گالی گلوچ جو ہے وہ تو چلنے. کتے کیا لکھا ہوا؟ کتے تو جیتے جی مردہ ہے کتا. اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے. کون مردہ ہے کون؟ حافظ احسان بریلوی کہتے ہیں لاؤ لائیو ریڈیو میں مناظرہ کرو. اعوذ باللہ. جا کے دیوار سے مناظرہ کرو، اپنے بابا سے مناظرہ کر لو جن کو تم پوجتے ہو. مجھ سے کیا مناظرہ کرو گے آپ؟ ایمان اور عقیدہ صحیح کرو پہلے، تب مناظرہ کس پہ کرو گے تم؟ مناظرہ کرو گے؟ ہے ہمت تمہیں مناظرہ کرنے کی؟ پہلے اپنے عقیدے صحیح کرو. قادری جی میں آپ کے عقیدے بتاؤں گا تو پسینے چھوٹیں گے. پہلے توبہ کرو اللہ سے. مناظرہ کیا کرو گے تم جاہل آدمی؟ کیا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا اللہ کے علاوہ کسی عورت کرنی چاہے. ان کا کہنا ہے صرف اللہ کی کیا ہے وہ کیسی کی عورت کرنی ہے کیا؟ وہ جماعت تبلیغ ہے، اللہ کی طرف ہی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی دعوت ہی. وہ تو ظاہر ہے تم سے ملیں گے تو سب سے پہلے وہی اللہ ہی رسول کی بات ہوگی محترم. بعد میں کیا یار آپ لوگوں کو بس اللہ ہدایت دے یار، اللہ ہدایت دے. کچھ سمجھ ہے؟ پڑھو یہ کتاب پڑھو، بس یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو پلیز، یہ کتاب پڑھو. اور بھی 2 4 10 کتابیں بتاؤں، صرف یہ پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی سب پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا. پہلے تم یہ تو معلوم کرو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ شرک ہے. تم شرک کو بھی توحید سمجھے ہو، ایمان سمجھے ہوئے ہو. شرک کو بھی دین، خبر پرستی، تعزیہ پرستی، یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ، ڈبے اور انگڑے اور بھنگڑے اور ناچ اور عرس اور میلے اور نظر اور نیاب، چراغاں، اگربتیاں، سلگانا، تعویذ، گنڈے، یہ سب تم نے اسلام سمجھا ہوا ہے. تو تم کو کہاں سے توحید سمجھ میں آئے گی بھائی؟ پہلے توحید کو سمجھو. آپ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھو. تم کہہ رہے ہو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ارے بھائی آپ نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ آپ کے علم کے اندر ہر چیز موجود ہے. جب آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے
तो आप कैसे देखोगे? हमने देखा, हमने सुना, हम रहे, हम जानते हैं, हमको पता है। अब आप कहो कि अमेरिका हमने नहीं देखा, तो अमेरिका है ही नहीं। अब हमने देखा, हमने बर्तानिया देखा, हमें पता है। आपने नहीं देखा तो है ही नहीं। ये कौन सी बात रही भाई? जो चीज आपने नहीं देखी है तो आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब कोई आदमी बताए कि हाँ बर्तानिया है, ये देखो नक्शा है, ये तब तो मानो। उसके बाद भी को नहीं हम नहीं मानते, हमने तो देखा ही। अजीब बावलापनी है ये। अरे भाई, ये शिर्क और बिदात इस किताब के अंदर मौजूद है। ये किताब तो मैं एक नमूना बता रहा हूं कि दसियों किताबें मौजूद है मोहतरम। मैं आपको क्या बताऊं? तो आपने नहीं पढ़ा, नहीं सुना तो पढ़िए, ये हटाओ ना यार। ये क्या दूसरा सवाल आगे कर गए हो? उसको छोड़ो, उसको आगे बढ़ाओ। कोई और सवाल लाओ। कहां है मौजू पर सवालात कीजिए। तबलीगी जमात की शिरकियात वादे करें, वीडियोज के अंदर मौजूद हैं इस किताब के अंदर, आप खुद पढ़ लें। हम अगर बताएंगे तो आप कहोगे साहब मिलावट कर रहे हैं। आप खुद ही आप जाइए पढ़िए, और इंशाअल्लाह ऐसा भी होगा तो हम पूरी फाइल बना करके आप अपना व्हाट्सएप दीजिए, उस पर डाल देंगे, आपके पास भेज देंगे, पूरी फाइल भेज देंगे, आवाज और साउंड और अक्स के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ठीक है? और क्या है? चल, क्या है? चल कुत्ते के बच्चे, तुम हरामी हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ये कौन है? सैयद आलम ज़ेब जान, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। हमारे नबी ने कितना सब्र किया। लेकिन उनको तो खुल्लम खुल्ला काफिर थे। ये तो बेचारे कलमे की आड़ में जो है बैठे हुए लोग हैं, इनका क्या इलाज हो? तो कलमे पढ़ पढ़ करके कुफ्र और शिर्क के ऊपर बेचारे, इनको हम जन्नत की राह बतला रहे हैं तो ये गालियां दे रहे हैं। शैतान किस किस तरह से जो है इनको वो कर रहा है। अब देखो, हमने अमेरिका बरतानिया का नाम लिया तो क्या कह रहा है? ये बात आपने अमेरिका बरतानिया में जाकर ओ बता दिया। अब तो अल्लाह हिदायत दे आपको। जो लोग खुद अपनी असल किताब को छोड़े हुए हैं, खैर स्पीड होता है कि वो चला जाता है। अच्छा भैया, गाने बजाने चाहे सऊदी अरब में हो, चाहे वो दुनिया में हो, मक्का में हो, मदीना में हो, हराम तो हराम है। वो कौन उसको हलाल कह रहा भाई? हैं? उल्लू बना रहे हो सबको। गाने की आड़ में लेके अपने गलादत जो शिर्क और कुफ्र है उसको छुपाना चाह रहे हो। छुपा लो, छुपा लो। अल्लाह ताला के यहां आपको जवाब देना, हमें नहीं। अल्लाह आपसे पूछेगा, और जब वहां पूछेगा, जब फिर वहां कोई काम नहीं आएगा। याद रखो, यहां चिल्लाओ या गौसल मदद, यहां चिल्लाओ अपने बुजुर्गों का नाम, लेकिन जब कब्र में जाओगे ना तो वहां ना बुजुर्ग ना बुजुर्गी कोई नहीं आएगा। वहां तो आप होंगे, फरिश्ते होंगे, अल्लाह ताला आपसे सवाल जवाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। खैर, ये सब गालियां हैं। अब ये इनको हम क्या करवाएं? ये शायद पूरी लॉबी अब बिठा दी गई है आरएसएस की, कि अब जब भी कोई ऑनलाइन बात करे तो बस यही सब करो, यही गाली गुलूज बक्को, ताकि लोगों को बददिल किया जाए। लेकिन देखें, ये गाली गुलूज बक करके आप इस्लाम की छवि को खुद आप क्या कहते हैं गंदा कर रहे हैं, और खुद अपने आप को गंदा कर रहे हैं। और इसमें नुकसान इस्लाम का भी है, क्योंकि दुश्मन भी देखेगा तो यही कहेगा ये मुसलमान हैं। फिर वही होता है कि फिर ये हैं इसी लायक कि इनको डंडे काफिर मारे, जूते मारे, इनके ऊपर थूकें और इनको जलील करें। इसी लायक ये हैं, इसीलिए ये सब खुल के आ रहे हैं कि जब इनके ऊपर बात आएगी तो ये क्या करेंगे, बजाय अपनी इस्लाह करने के, बजाय कुरान और सुन्नत के मुताबिक। ये वो लोग हैं जिनकी हमारे यहाँ बहुत सारे मौलवी क्या कहते हैं इंटरव्यू में बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह वाली जमात है, बहुत पाकी। ये अल्लाह वाले भैया, अल्लाह हिदायत दे। अगर ऐसे ही है तो अल्लाह ताला ऐसे खुदा महफूज रखे हर बला से, खुसूसन आजकल के औलिया से, इस तरह के औलिया से अल्लाह महफूज रखे। भाइयों, गालियां मत देना, गालियां मुनाफिक देते हैं। जाहिर है और कौन देगा जी? इब्ने सऊद का एजेंट, अल्लाह अल्लाह तुझे हिदायत दे। तुम्हें ज्यादा पता होगा भाई दिलों के भेदों का। और क्या है? शेख हरम पाक में नंगा नाच किस हदीस में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है हरम में नंगा नाच नाचो है। हरम पाक में कौन नंगा नाच नाच रहा है? कौन नाच रहा है? आपको पता होगा भैया, हमने तो नहीं देखा कभी नंगा नाच।
एहराम पहने हुए बंदे, बगैर एहराम पहने हुए बंदे तवाफ करते हुए देखा हमने हरम पाक में। नंगा नाच तो हमने नहीं नाचते हुए देखा। हो सकता है कि आपकी आंख और दूरबीन इतनी तेज हो कि हरम पाक में जो है नंगा नाच हो रहा हो। अजमेर में तो देखा है। हाँ, अजमेर में हमने देखा है, दातागंज हजवेरी में देखा है। अगर वो नंगा नाच देखना है तो मैं दिखा सकता हूं। आपको कितना रियाल मिलता है ईमान के बदले में? वाह मुजीब साहब, कितना देंगे आप मुझे खरीदने में? यहां हमें मिला है तो हमने अपना ईमान बेच दिया। अरे ईमान तो मैं पहले बेचा हुआ था जब आपके धर्म में था। खोलू मैं, जब मैं खुद हनफी मुकल्लिद था, जब मैं खुद बरेलवी कबर परस्त था, उस वक्त मेरा ईमान बिका हुआ था। अब अगर आप कह रहे हो कि इन्होंने खरीद लिया है तो आप भी खरीद लो। कितना देंगे आप? है दम? बहुत बड़े फितना हो आप, अल्लाह ही हिदायत दे, आमीन। ये फितना है, हाँ बेशक फितना है। हम तो हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले, इसी को कुफारे मक्का फितना कहते थे। एक शख्स आके पूरे कबीले में, पूरे मक्के में फितना पैदा कर रहा है। तौहीद की दावत फितना है, सुन्नत रसूल की तरफ दावत देना फितना है, और शिर्क और कुफ्र के ऊपर मरना और उसकी दावत देना यही सुन्नत है, यही दीन इस्लाम है। ऐसे दीन इस्लाम को हम सलाम करते हैं। और शर्म करो, वरना अल्लाह ताला के यहां कहीं पकड़े ना जाओ, तुम्हारी आल औलाद के ऊपर ना कहीं खुमार कहीं गिर पड़े वो कि तौहीद और सुन्नत की दावत को फितना कह रहे हो आप। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मेरा ख्याल है बात बहुत सीधे लोगों की समझ में आ रही है, इसलिए ये बेचारे शैतान यहां पे चिल्ला रहे हैं। पीछे इनके जो हमारी आवाजें मेरे भाई मेरी बहनें सुन रही हैं, वो समझ रहे हैं कि हक क्या है बातिल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, ऐ अल्लाह हक को हक दिखा और उसके इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, और बातिल को बातिल दिखा और उससे हमें बचने की रोजी और रिज़्क़ अता फरमाए। मौला हमें हिदायत की रोजी अता फरमा। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो बहुत पहले 1982 ही में कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लिया, कबर परस्ती से तौबा कर लिया, तकलीदियत से तौबा कर लिया, अंधभक्ति से तौबा कर लिया, इन मुर्शिदों इन मुजावरों की बैयतों से तौबा कर लिया। हमने कब्रों के सजदे और कब्रों के तवाफ और कब्रों के ऊपर चिरागां और बत्तियां और नियाज, हमसे पूछो अपने घर की बात, हम तो घर के भेदी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो उससे तौबा करके आ गए, अल्लाह का फजल है। और फिर अल्लाह ताला ने उस दर से, उन तमाम दरों से हटाकर अपने दर मक्का मुकर्रमा बुलाया। मदीनतुर रसूल में अल्लाह ताला ने हमें तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। हमने मदीनतुर रसूल में तालीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, ममलकत तौहीद के खर्चे पर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, यह एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पढ़ा और ममलकत सऊदी अरबिया की तौहीद परस्ताना फिजा में, अल्लाह के फजल से ईमानी फिजा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश पाई। और आज हम आपको उन तमाम शिरकियात और कुफरियात से अल्लाह ने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। और ऐ उलमा हजरात, अल्लाह से डरो, अपने सियासी मकासद के लिए उम्मत को गुमराहियत के राहों पर मत ले जाओ, अवाम को गुमराह न करो। अपनी दाढ़ियां तुम्हारी सफेद हैं, अमामे पगड़ियां सफेद सफेद बांध कर झूठ न बोलो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। ए अल्लाह उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा जो उम्मत मोहम्मदिया को गुमराह कर रहे हैं। ए अल्लाह उन्हें या तो हिदायत दे या उन्हें नीस्त नाबूद कर दे, जो तेरे बंदे तेरे बंदों को और तेरे नबी की उम्मत को झूठ बोल बोल कर फिरके फिरके टुकड़े टुकड़े जमात जमात के अंदर ए अल्लाह गुमराह कर रहे हैं। ए अल्लाह उन्हें हिदायत दे या उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे, नीस्त नाबूद फरमा दे, उनके मुंह में खाक डाल दे मेरे मौला। याद रखो, तुम क्या समझते हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सुन रहा है। हम किसकी दावत दे रहे हैं यह हम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हम यही कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, ये तो अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए, बस ठीक है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बात बहुत लंबी थी, लेकिन सिर्फ वही सवालात, वही गाली गलूज आ रहे हैं, इसलिए कोई मोहतरम शख्सियतें यहाँ इस वक्त ऑनलाइन पे नहीं हैं कि वो कोई सवाल करें तो उनका मैं जवाब दूं। बाकी सारे वही नचोड़े भगौड़े गाली गुरूज गजेड़ी मुहश्शिश और गर्दुल्ले मौजूद हैं, वही सब इधर उधर की बकवास कर रहे हैं, इसलिए उनका जवाब क्या देना है। बहरहाल अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।